In the previous video on alcohols, phenols, and ethers, I took up few chemical reactions of phenols. Along with that, I discussed regarding the reactivity or the acidic strength of phenols in the presence of various substituents like nitro, chloro, cyano, methyl, methoxy, etc. So mainly we discuss acidic strength and did the reactions involving the cleavage of OH bond and the OH group. Now, I told in the next video, I will be taking up reactions on that involve benzene ring as a whole. Now, we know that hydroxyl group is ortho and para directing. So, it directs the incoming electrophile to ortho and para position. And uska reason bhi I explained in the previous video. So, considering that in mind, we will be carrying out few reactions that I mentioned the name of them like sulfonation, chlorination, or halogenation, nitration, Friedel-Crafts reactions, coupling reactions, Riemer-Tiemann, so many reactions we will be taking up in this video. So let's get started with the first reaction, which is the halogenation. Now, while discussing the halogenation of phenol, keep in mind that obviously if hydroxyl is ortho para directing, so the compound form will be ortho and para. The compound form will have the halogen at ortho and para position. यानी कि अगर हम क्लोरीनेशन करें या जो भी ब्रोमिनेशन करें तो आपके जो क्लोरीन या ब्रोमीन लगेंगे वो ऑर्थो एंड पैरा पे लगेंगे. बट इस रिएक्शन में एक स्पेशल चीज है. नाउ इन दिस रिएक्शन व्हेन वी carry out bromination. So what happens in bromination? If bromination of phenol is done with bromine water, like bromine in water, then we get a tri substituted. That means हमें जो कंपाउंड बनता है हमारा Br, Br, Br. Bromine gets substituted at all the three positions, all the like two ortho ones and the एक पैरा होती है उसपे. So we get this product. This happens when you carry out this reaction in bromine water, bromine in water. Now, if we use a non-polar solvent, so in the case of a non-polar solvent like CH2, CCl4 or chloroform. So if you use any one of these, then the bromination occurs only at one ortho position. So we get two products. One is this ortho and another is para. तो इस केस में ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे होता है. Now the difference that why this happens in the case of water, why do we get 2,4,6 tribromo-phenol is in water your phenol gets ionized to give phenoxide ion. So basically water के अंदर ये जो आपका phenol है ये ionize होके phenoxide ion दे देता है. Now we know that phenoxide ion पे negative charge होता है and phenoxide ion जो होता है वो basically negative charge को और ज्यादा disperse कर देता है at ortho and para position. So it enhances the negative charge on the ortho and para positions. इसकी वजह से दोनों ऑर्थो पोजीशंस एंड एक पैरा ऑर्थो तो होनी है एक्टिवेट, बट बोथ ऑर्थो एंड वन पैरा इट गेट्स एक्टिवेटेड इवन मोर in case of bromine in water. That's why we get this tri substituted product. मतलब bromine जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें ब्रोमोनियम आयन का अटैक होता है Br plus का. So if it finds more charge like negative charge on any of the position, it will obviously get attached to that particular position. So in this case दोनों ortho and para सब activate हो गए हैं highly because of this negative charge and hence we get this product. While in the case of bromine in non-polar solvents like carbon disulfide, carbon tetrachloride और chloroform, obviously आपका जो phenol है वो आयनाइज नहीं होगा, इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा आइसोमर बनेगा. एंड जनरली पैरा आइसोमर ज्यादा बनते हैं देन ऑर्थो बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है नजदीक होने की वजह से जो होता है. पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट देन your ortho isomer.
ठीक है, तो आपकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कभी भी वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही भेजेगा आपके ब्रोमोनियम आयन को, यानी कि आपके इलेक्ट्रोफाइल को, बट बिकॉज दिस इज नॉट दैट हाईली एक्टिवेटेड इन दिस केस एंड हेंस वी गेट टू सेपरेट प्रोडक्ट दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, ट्राई मिलते हैं ब्रोमीन इन वाटर में, वेरी एसेंशियल है। द क्वेश्चन कैन कम कि अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनोल चाहिए तो क्या कंडीशन चाहिए होगी उसके लिए, वाटर। एंड अगर हमें चाहिए डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो एंड पैरा सेपरेट आइसोमर्स चाहिए तो क्या कंडीशन चाहिए, उसमें हमें चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट, मे बी CS2, जो भी ऑप्शंस दिए हो, अगर MCQ के फॉर्म में कर रहे हो तो CS2, CCl4 या क्लोरोफॉर्म यूज होगा। सो दिस वाज हेलोजिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच इज नाइट्रेशन। So obviously we will, what we will do, we will produce a nitrophenol इस केस में। तो इस केस में रिएक्शंस कई तरह से होती हैं। अगर आप फिनोल को ट्रीट करते हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से at around 293 Kelvin, we get ortho and para isomers, orthonitrophenol, and the second one would be para nitrophenol. So these two products will be formed. ठीक है, and if you carry out same reaction in the presence of concentrated H2SO4 along with concentrated nitric acid HNO3, तो यहाँ पे बेसिकली 3 moles of HNO3 कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो वी विल गेट अ ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पे। वी विल गेट दिस कंपाउंड विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ये मिलेगा हमें यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ये इसको एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 नाइट्रो आ गए तो दिस फिनोल रिंग इट बिकम्स हाईली एसिडिक, इसीलिए इसका नाम पिक्रिक एसिड है। 3 नाइट्रो, तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिनका -I इफेक्ट भी है, -R, यानी कि रेजोनेंस में भी ये पार्ट लेंगे तीनों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हैं। So your this compound 2,4,6 trinitrophenol is highly acidic as compared to other phenols, इसीलिए इसका नाम है पिक्रिक एसिड बोला है इसे। ठीक है, तो दिस हैपेंस हियर, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि बिकॉज ये जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन है इसकी यील्ड लो ऑब्टेन होती है। इस केस में वेरी लो यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। व्हाई? बिकॉज आपका जो ये नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये फिनोल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कम बनता है। तो इफ यू वांट टू गेट अ बेटर रिजल्ट, बेटर अमाउंट ऑफ पिक्रिक एसिड, व्हाट वी विल डू द रिएक्शन इन अ डिफरेंट मैनर। पहले हम सल्फोनेशन करेंगे, फिर हम नाइट्रेशन करेंगे, ताकि सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बन जाए, फिर उसकी हो आपकी नाइट्रेशन। यानी कि पहले फिनोल को ट्रीट करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 373 केल्विन पे, वी विल गेट हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड्स। तो ये दो हमारे आइसोमर बन जाएंगे। एंड अब जब इनको वी विल ट्रीट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को एक साथ यूज ना करके पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए, फिर नाइट्रिक एसिड ऐड करिए, एंड इसको मिक्सचर को हीट कीजिए, यू विल गेट ट्राइनाइट्रोफिनोल, NO2 NO2 NO2, ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइनाइट्रोफिनोल में, एंड यू गेट अ बेटर yield of this compound. So this was your नाइट्रेशन। यहां से एक रिएक्शन हमने और कर ली, सल्फोनेशन। देखिए यहाँ पे हमने जो ये रिएक्शन किया, दिस इज व्हाट, दिस इज सल्फोनेशन। तो इसमें सल्फोनेशन भी कवर हो गई, तो मैं यही कर देती हूँ सल्फोनेशन। वो क्या होगी, वो यही रिएक्शन है जो मैंने ऊपर कराई है। फिनोल को जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 373 केल्विन पे हीट करोगे, यू विल गेट 2 सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। सो दिस वाज अबाउट योर सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस।
रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। सबसे पहले करते हैं अल्काइलेशन, जिसमें अल्काइल ग्रुप लगाएंगे हम फिनोल पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन के लिए क्या करते हैं, एज यूजुअल वेरी सिंपल, फिनोल लिया, मिथाइल लगाना है तो हम लिया मिथाइल क्लोराइड। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होती है अल्काइलेशन के लिए, नेसेसरी कंडीशन, अब क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे एमसीक्यूज में कि फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, ये तो लेंगे ही हम कंपाउंड जो हमें जिनकी करनी है। सो दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो वी गेट ऑर्थो मिथाइल फिनोल एंड पैरा मिथाइल फिनोल। अगेन इसमें मेजर आपका ऑर्थो ही बनेगा, आपके मोस्टली केसेस में मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो की जगह पैरा होता है, बिकॉज ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। ये तो थी अल्काइलेशन। नाउ कमिंग टू एसाइलेशन। एसाइलेशन में COCH3 लगाना होता है, यानी कि फिनोल लगाने, बेसिकली कीटोन्स लगाने होते हैं हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये CH3 COCl एसिड क्लोराइड लीजिए, अगेन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और आपका यहाँ पे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन एंड दूसरा बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसलिए क्योंकि COCH3 जब लग जाता है इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो वो कहलाता है एसीटोफिनोन। दिस इज एसीटोफिनोन। एंड कीटोन्स को हम प्रेफरेंस देते हैं नेमिंग में, तो ये अब एसीटोफिनोन का डेरिवेटिव हो गया, तो 1 2 एंड यहाँ पे 1 2 3 4। सो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये हो गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसमें एक ही प्रॉब्लम रहती है, इसमें भी जो यील्ड होती है वो कम होती है प्रोडक्ट्स की, बिकॉज आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ये फिनोल के साथ, फिनोल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन पे, तो ये फिनोल के साथ जो उसका हाइड्रोक्सिल पार्ट है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो दैट्स वाई वहां पे वो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने की वजह से जो यील्ड है वो थोड़ी कम हो जाती है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विच इज नोन एज कोल्ब-श्मिट रिएक्शन, जो किसी किसी बुक में कोल्ब्स रिएक्शन के नाम से भी है, ओनली कोल्ब्स रिएक्शन, बट दिस इज कोल्ब-श्मिट रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका फिनोल का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, पहले OH को ट्रीट करोगे NaOH के साथ, तो फिर यहां बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, करेक्ट। अब इसके अंदर ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना है, कोल्ब-श्मिट रिएक्शन में क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ना बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, तो 400 केल्विन पे 6 to 7 atm प्रेशर पे आपका जो है ये बन जाता है OCOON, ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, एंड देन फिर क्या होता है, इसकी हो जाती है रीअरेंजमेंट, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ONA और ये जो आपका C पार्ट है ये यहाँ चला जाता है, नो नॉट ONA, यहाँ पे जाता है OH, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से तो ये यहाँ चला जाएगा, एंड अलोंग विद COONA। एंड इसमें मेनली ऑर्थो आइसोमर ही बनता है, क्योंकि बिकॉज रीअरेंजमेंट ऑर्थो पे इजीली पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्थो नजदीक पड़ता है यहाँ पे, यहाँ जाने के लिए ये इजियर है। सो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे एसिड्स, डिल्यूट एसिड, इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, यानी कि हमने COON को कन्वर्ट कर दिया COOH में, तो सैलिसिलिक एसिड बन गया ऑर्थो
सैलिसिलिक एसिड। अगर पैरा आइसोमर बनाना है, अगर यही चीज पैरा से बनानी है, पैरा आइसोमर के लिए पैरा सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, विच इज अराउंड 573 केल्विन। यानी कि ऑर्थो, जो आपका ऑर्थो आइसोमर है वो 400 केल्विन लोअर टेम्परेचर पे बनता है, और पैरा आइसोमर आपका हाई टेम्परेचर पे बनता है अगर आपको ये बनाना है तो। OH COOH, then you need to heat the reaction mixture at 573 Kelvin. नेक्स्ट है रीमर्टीमन रिएक्शन, जो कि हम कर चुके हैं हेलोअल्केन्स में क्लोरोफॉर्म के साथ। तब हमने एक ही स्टेप में करी थी, यहाँ पे मैं स्टेप्स में कराऊंगी। तब एक स्टेप था सिंगल, यहाँ पे अब मल्टीपल स्टेप्स होंगे। क्या किया था हमने, फिनोल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको 340 केल्विन पे हीट किया एंड सैलिसैल्डिहाइड बनता है। This is not working well. CHO NaCl plus 2H2O, ये बनता है। ये रिएक्शन थी, इसको हम स्टेप्स में करते हैं। लेट मी चेंज द कलर बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग वेल। चलिए रीमर्टीमन खत्म करके फिर करती हूँ। तो आपका होता क्या रिएक्शन में, हम जब OH के फिनोल को क्लोरोफॉर्म, और मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल NaOH का यूज कर रही हूँ, इसको 340 केल्विन पे हीट करते हैं, तो ये जो ये ग्रुप है ये यहाँ चला जाता है। तो बेसिकली और OH कन्वर्ट हो जाता है ONa में, CHClCl, ये बन जाता है। इसके बाद इसमें दो मॉलिक्यूल, देखा मैंने 3 लिए थे ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के अब ऐड होंगे, तो यहाँ OH आ जाएगा और Cl निकल जाएगा। तो दिस विल बी ONa CH OH प्लस NaCl। अब जो आपका ये बना, ये ऑब्वियसली अनस्टेबल होता है, क्योंकि वाई सो, यस, हाँ ये अनस्टेबल होता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, OH और H, तो ये बन जाएगा आपका ONaCHO। यही बनाना था हमें, और इसको अब हम डाइल्यूट HCl डाल के कन्वर्ट कर लेंगे सैलिसैल्डिहाइड में, OHCHO। तो ये Na को जो है हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दी। तो ये हमारी रीमर्टीमन रिएक्शन है, इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है। अभी हम यही रिएक्शन रीमर्टीमन का एक और एग्जांपल करेंगे जो हमने पहले नहीं किया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो मैं इसमें पेन का कलर चेंज करने वाली हूँ बिकॉज दिस ब्लू कलर इज नॉट वर्किंग वेल। सो सेम रिएक्शन विद CCl4, फिनोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, NaOH, 340 केल्विन। ये ग्रुप ने इंट्रोड्यूस होना है ऑर्थो पोजीशन पे। तो OH CCl3, अब इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH कंज्यूम होंगे, जहां पहले यहाँ पे 2 हुए थे, टोटल 4 हो गए मतलब इस केस में, और पिछले वाले केस में 3 हुए थे OH। तो यहाँ पे COH, 3 OH इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इससे, -3 NaCl। अब ये अनस्टेबल है ऐसा कंपाउंड, 3 हाइड्रोक्सिल एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल टू गिव
अच्छा मैं ये भूल गई हूँ, यहाँ पे ये NaOH कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो ONA एग्जैक्टली सेम है, फर्क कितना है, लास्ट वाले में CHO एल्डिहाइड बना था, इस वाले में एल्डिहाइड की जगह एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बस यही डिफरेंस है इस केस में। और अब क्या करेंगे, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे ताकि Na जो है वो H में कन्वर्ट हो जाए। तो OH COOH, तो ये हमारा कंपाउंड होता है सैलिसिलिक एसिड। पहले बना था ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, अब बनेगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन ISC में आई थिंक रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, बट कपलिंग रिएक्शन के बारे में बता दूं, इट इज सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट फॉर फिनोल्स, इसलिए ये कर लो। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं और फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है डाइजोनियम सॉल्ट, दे आर स्टेबल एट अ वेरी लो टेम्परेचर। सो टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन एंड अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, ये Cl और ये H निकल जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसको हम डाई, जो एजो डाई कहलाती है। ये जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स डिटेल में पढ़ते हैं तब हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। दिस इज फॉर्म्ड प्लस HCl. This compound is known as para hydroxy एजोबेंजीन, और इसको हम एजो डाई बोलते हैं। डाई, डाई इसका कलर होता है, और ये कलर होता है इनका आई थिंक यहाँ पे ऑरेंज रेड डाई होती है, ये ऑरेंज रेड कलर की। तो फिनोल्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन देके ऑरेंज कलर देते हैं, ऑरेंज रेड कलर देते हैं, जबकि अल्कोहल्स नहीं देते। तो ये सॉर्ट ऑफ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो जाता है बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन करना मॉलिक्यूल्स का विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो कंडेंसेशन, ये रिएक्शन ISC के रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, वेरी सिंपल रिएक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट वन। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, दिस इज थैलिक एसिड COOH। जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग पे एडजेसेंट लगे होते हैं, तो दिस इज नोन एज थैलिक एसिड। इससे जो एनहाइड्राइड बनती है, एनहाइड्राइड्स कैसे बनती है, एनहाइड्राइड्स बनती है जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, दो वाटर रिलीज होता है तो एनहाइड्राइड बनती है। तो इससे कौन सी एनहाइड्राइड बनेगी, थैलिक एनहाइड्राइड। वो कैसे बनेगी, ये आपस में ही करेंगे कंबाइन, COO, ये माइनस वाटर, दिस इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड। तो इसके साथ रिएक्शन है फिनोल की। तो मैं ये इस तरह से कर रही हूँ, ये मैं बड़े अलग तरीके से लिख रही हूँ। थैलिक एनहाइड्राइड को मैं ऊपर लिख रही हूँ CO, एंड आपके दो फिनोल मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, इनको मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे OH, OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली हुई है कंडेंसेशन। होना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है। तो वाटर कहाँ से रिमूव होगा, वाटर यहां से रिमूव होगा, ये वाटर की रिमूवल ऐसे होगी। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और इसको हीट कर देते हैं। वी गेट अ कंपाउंड नोन एज फिनोप्थिलीन, जो हम लैब में यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, ये आपने बहुत बार सुना होगा। सो फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर हम ऐसे समझ के बनाएंगे तो इट इज क्वाइट इजी। So, which this compound is known as phenolphthalein. Phenolphthalein जो होता है, this compound you know is used as a, it is used as an indicator. Phenolphthalein हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं। ये कलरलेस होता है, अदरवाइज दिस इज कलरलेस, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में ये रेड कलर या पिंक कलर देता है और एसिडिक में ये फिर से कलरलेस हो जाता है। तो जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, अगर आपका मीडियम बेसिक है तो ये पिंक कलर होगा इसका, और अगर उसमें एसिड अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा तो इसका कलरलेस हो जाता है, इसका कलर। सो कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक में ये होता है पिंक कलर का, एंड एसिडिक मीडियम में ये हो जाता है colorless. A very commonly used acid base indicator is this compound known as phenolphthalein. ठीक है, तो ये होगी हमारी रिएक्शन कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड। इसके साथ ठीक है, अभी ये रिएक्शन क्या मैं बताती हूँ। इस रिएक्शन का एक नाम है, दिस इज नोन एज लेडरर-मेनेस रिएक्शन। ये भी पार्ट नहीं है आईएससी के रिड्यूस सिलेबस का, ये रिएक्शन भी। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो फिनोल है उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस करना है, एंड ये रिएक्शन होती है सोडियम या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, तो आपके जो ये दो कंपाउंड्स बन जाएंगे बेंजाइल अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी, इसके साथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे CH2OH लग जाएगा। अब इनके बारे में क्या है, ये रिएक्शन यहाँ तक तो है लेडरर-मेनेस रिएक्शन के जो रिएक्शन है LM रिएक्शन, लेकिन इसमें क्या है, अगर एक्सेस में HCHO ले लें, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, तो क्या होता है, इसी के डाई एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे भी हो जाएगी, यही ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा और यहाँ पे भी लग जाएगा, एंड देन ये जो बनते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, ये आपस में क्रॉस लिंक होके पॉलीमर बना देते हैं जिसका नाम है बेकेलाइट। ये आपने सुना होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इलेक्ट्रिक गुड्स में इस्तेमाल होता है, लिंक्ड पॉलीमर। ये कैसे बनता है, जब यही रिएक्शन में हम HCHO फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में डाल दें, तो जो आपका ये फिनोल बना है जिसमें आपका CH2OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे आया है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा सबको ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि बेसिकली ये बन जाता है। ये तो ये कंपाउंड्स ये जो बनते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये आपस में क्रॉस लिंक होके दे फॉर्म अ पॉलीमर नोन एज बेकेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। ये भी है रिडक्शन रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग की रिडक्शन है। बेसिकली उसमें जो है हमने हाइड्रोजन ऐड किया है, तो इसको क्या करते हैं, फिनोल को जब हम हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल at about 473 to 533 केल्विन हीट करते हैं, we get cyclohexanone। देखिए यहाँ से बेंजीन के जो हैं ये तीनों बॉन्ड चले गए, डबल बॉन्ड,
ये, और यहाँ पे लगी हाइड्रोजन, सो वी गेट साइक्लोहेक्सेनॉल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने एक रिडक्शन रिएक्शन पहले भी कराई थी जिसमें फिनोल से बेंजीन बनता है। वो बेंजीन की रिडक्शन नहीं है, वो OH की रिमूवल है जिंक डस्ट से जब हम करते हैं, तो वो रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है। वो रिएक्शन फिनोल की रिमूवल है, वहां पे हाइड्रोजन लग रहा है, और ये रिएक्शन है बेंजीन की हाइड्रोजनेशन, यानी कि बेंजीन के जो तीनों ट्रिपल बॉन्ड है उन पे हाइड्रोजन ऐड होगी, वो सिंगल बॉन्ड बन गया, कंपाउंड बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ ISC बोर्ड रिड्यूस सिलेबस और सेमेस्टर 1 एग्जाम्स, उनके लिए नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, फिनोल को एसिटिक एसिड की एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, विच इज CH3COO वी गेट अ कंपाउंड, हमारा एक एस्टर बन जाता है यहाँ पे OCOCH3 along with एसिटिक एसिड। अब जब इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते तो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिसमें आपका जो ये पार्ट है वो ऑर्थो एंड पैरा पे चला जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे, एंड वी गेट 2 आइसोमर्स, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो ये बन जाते हैं आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मिल जाता है। So these were reactions that involved benzene ring. तो 11 reactions हैं जिसमें से सबकी सब ISC के रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, डीमर टीमन तक हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं है। सो रिएक्शन क्या आती है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, कोल्ड-श्मिट रिएक्शन, रीमर-टीमन, फिर कपलिंग रिएक्शन थी, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, कंडेंसेशन विथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड नेक्स्ट रिडक्शन, एंड द लास्ट वन फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ फिनोल्स, दैट इज डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। मतलब अल्कोहल्स एंड फिनोल्स को डिस्टिंग्विश करना हो तो कौन से टेस्ट होंगे। फर्स्ट तो सबसे सिंपल है ब्लू लिटमस, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल्स। तो अगर मैं बात करूं, अल्कोहल्स यहां लिख लूं, फिनोल्स यहां लिख लूं, तो आपका जो लिटमस टेस्ट है, यानी कि बिकॉज दे आर एसिडिक, तो ये क्या करेंगे, ये आपका लिटमस टेस्ट ऑब्वियसली देंगे। लिटमस टेस्ट क्या करते हैं, लिटमस एसिड्स क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये देंगे, और फिनोल्स नहीं देंगे। ओ आई एम सॉरी, अल्कोहल्स नहीं देंगे, टर्न करेंगे, ये करेंगे ब्लू लिटमस को रेड। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद एक हमारा रिएक्शन मैंने कराई थी, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन मैंने बताया था एजोडाइज बनती है, तो अल्कोहल्स नहीं देते, फिनोल्स गिव एजोडाइज। ये रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है, तो ये देते हैं आपका ये टेस्ट। तो हो गया कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इनमें क्या होता है, अल्कोहल्स नहीं देते ये टेस्ट, फिनोल्स देते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने फिनोल्स को, आई मीन गिवन जो भी हमारा कंपाउंड है अल्कोहल या फिनोल, उसको हम फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। अगर वॉयलेट कलर आ जाए, वॉयलेट कलर आ जाए, तो दैट मीन्स योर कंपाउंड इज फिनोल, ठीक है। वैसे डिफरेंट फिनोल्स डिफरेंट कलर्स देते हैं, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा, बट वॉयलेट कलर इज फॉर फिनोल्स। तो अगर फिर बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की, तो आपका जो है होता क्या है, ये होता है फिनोल्स जो हैं ये फेरिक क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन होती है, फेरिक फिनोक्साइड बनता है।
ये बनता है। दिस कंपाउंड इज फॉर्म विच इज वॉयलेट इन कलर। दैट्स वाई ये टेस्ट होता है। तो अल्कोहल्स नहीं देते, फिनोल्स देते हैं ये टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा है हमारी यस ब्रोमीन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर, मैंने एक रिएक्शन कराई थी ब्रोमीन एंड वाटर के साथ, जिसमें अल्कोहल तो कुछ नहीं देंगे, नो प्रेसिपिटेट्स, लेकिन आपके जो फिनोल्स हैं वो देंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। किसके, मैंने एक रिएक्शन कराई थी अभी पीछे, हेलोजिनेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ ट्राइब्रोमोफिनोल, ये बनता है ब्रोमीन वाटर के साथ, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये बनता है। तो इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जबकि अल्कोहल्स में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। लास्ट है टेस्ट जो कि आईएससी में नहीं है, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ये टेस्ट क्या है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है बेसिकली। इसमें क्या होता है, हम अपने फिनोल को, यानी कि ये तो नहीं अल्कोहल्स नहीं देते, ये देते हैं ये टेस्ट। इस टेस्ट में करते क्या है, पहले फिनोल को आपने ट्रीट करना है NaNO2 NHCl से। बेसिकली हमें HNO2 से ट्रीट करना है, हमें HNO2 चाहिए, तो HNO2 तो हमारा तभी बनता है। उसके बाद ये जो भी कंपाउंड बना, ये फिर से रिएक्ट करता है, यहाँ पे कंपाउंड A बनेगा, फिर ये फिर से रिएक्ट करेगा आपके फिनोल से, ठीक है। फिनोल से रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू गिव अ ब्लू ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, ब्लू ग्रीन कलर कंपाउंड का। इसको जब आप डाइल्यूट करेंगे विद वाटर, डाइल्यूट विद वाटर, you will get red color, and red color वाले सॉल्यूशन में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, we will get deep blue color। सो ये जो स्टेप्स हैं, इसमें जो कंपाउंड्स बनते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं करवा देती हूँ क्या बनते हैं कंपाउंड्स, बट आई डोंट थिंक सो कंपाउंड्स एज ऑफ नाउ जरूरी है करने। सो बेसिकली फिनोल्स on undergoing Lieberman's nitroso test different color changes देते हैं on adding different substances, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब पहले स्टेप के बाद NaNO2HCl के बाद जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर आता है, फिर वाटर से डाइल्यूट करके रेड कलर आता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे डीप ब्लू कलर आता है। तो होता क्या है वो बता ही देती हूँ आपको। सो बेसिकली फिनोल NaNO2 प्लस HCl, इसको किया वार्म, एक नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, नाइट्रोसोफिनोल, दिस इज नाइट्रोसोफिनोल, ये रीअरेंज हो जाता है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O NOH। अब इस कंपाउंड में मैंने बोला था ना ये कंपाउंड है, इसको फिर जो ये कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना आपका, इसको जब आप ट्रीट करते हो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल से in the presence of H2SO4, then a complex structure is formed which is OH and एक सॉल्ट बन जाता है, बेसिकली हाइड्रोजन सल्फेट, ये सॉल्ट बनता है। इसका होता है ब्लू ग्रीन कलर, इसमें डाइल्यूट विद वाटर तो बनेगा ये कंपाउंड, जिसका होता है रेड कलर, जिसमें हम जब डालेंगे इसको बेसिक करेंगे, जब
सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका सोडियम यहाँ पे लग जाएगा। इसका होता है डीप ब्लू कलर। तो दिस इज लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट फॉर फिनोल्स, जो कि देते हैं सिर्फ फिनोल्स। तो this was all about your phenols. So the next topic that we will be covering in the next video will be ethers.